Professor J.S. Sandhu sir, and by your benevolent contribution, sir, I take privilege to thank Honorable Vice Chancellor Professor J.S. Sandhu sir for encouraging us to take new initiatives. Vice Chancellor, the Speaker, Professor Harman Singh Haryana sir, all the deans, directors, HODs, faculty members,
professor who is तो वो स्लाइड seen में as नहीं the चला most सकता. leading one, but at least जब वो भोपाल इनके लिए कह रहा होगा ये आएंगे 10-15 हैं, इनके लिए कह रहा होगा फिर आएंगे, इतने के होंगे वहाँ से तो वो उधर वो कंप्यूटर से निकलता क्या है? उस पर कुछ वेब कैम नहीं है, कुछ ही नहीं है सर उसमें, तो स्पीकर वेब कैम कुछ है नहीं. Good morning, dear students. Today I deliver lecture on rest part of previous class. Previous class we discussed about like that what is disease and tetrahedral disease triangle whatever. And next we discuss about disease on the basis of their occurrence. Disease on the basis of their occurrence. कैसे disease किस base पे आती है, कैसे उन्हें classify किया गया है. A sporadic disease, a disease occur at very irregular interval and location and in relatively few instances. Example, blotch disease of cucumber, angular leaf spot of cotton. Means a disease very irregular, यानी कभी आ गई कभी नहीं आई. Location और interval. Interval का मतलब है period, यानी इस साल आई नेक्स्ट ईयर नहीं आई. Location means जयपुर में आई, means राजस्थान के जोन में आई एंड नेक्स्ट टाइम कहीं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं और. मतलब लोकेशन और पीरियड्स इरेगुलर हो. कौन सी डिजीज है? स्पोरेडिक डिजीज. Endemic disease means a disease is more or less constantly present in a particular area. Please concentrate this topic. Endemic disease, a disease is more or less constantly present in particular area or location in a moderate form, not a severe form, only a moderate form. Less और constantly present होगी particular area में, means राजस्थान में आएगी तो राजस्थान में ही आएगी, वो एक particular area fix है उसके लिए. Like that example, wart disease of potato. Epidemic disease means a disease occurred widely but periodically in severe form. यानी means severe form में आएगी but periodically, not a particular location dependent, only depend periodically, year to year. Like that example, powdery mildew, late blight rust. Pandemic disease, a disease prevalent throughout the country, continent or the world. Means a disease इतनी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में है कि थ्रू आउट द कंट्री के बाहर, कॉन्टिनेंट, द्वीप, महाद्वीप, संसार, ऑल ओवर स्प्रेड हो जाए. कौन सी डिजीज चल रही है अभी ऐसी? कोरोना. कोरोना इज ए पैंडेमिक डिजीज. मीन्स स्प्रेड आउट ऑफ कंट्री, continent and the world. Example, in plants, late blight of potato. In humans, corona, COVID-19, it is a pandemic disease. In plants, late blight of potato. I think, do you understand? Sporadic disease, endemic disease, epidemic disease and pandemic disease. Sporadic disease means irregular interval and location. Got it? Endemic disease, less constantly present in a particular area. Press on word particular area या location. Epidemic means widely but periodically. Pandemic means throughout the country, continent and the world. Late blight of potato. Like that corona. कोरोना एक महामारी है जो कि पैंडेमिक डिजीज है. वैसे ही लेट ब्लाइट एक महामारी है पौधों की
ओके, डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस मीन्स, कविता ने मैसेज किया है कि मैम वापस से बताइए, स्पोरेडिक डिजीज, endemic disease, epidemic disease, pandemic disease. Classify in 4 categories. Sporadic disease means not a particular. एक second. उषा, उषा तुम तुम्हारा माइक अनम्यूट कर सकती हो, और तुम क्या पूछना चाहती हो? जस्ट वन थिंग, आस्क टू स्टार्ट माय क्वेश्चन। ओके, जो भी क्वेरीज हैं हम बाद में करेंगे, लेक्चर के बाद में करेंगे। स्पोरेडिक डिजीज अकर्स एट अ वेरी इरेगुलर इंटरवल, मींस डिजीज डिपेंड करेगी पीरियड्स एंड लोकेशन पे। स्पोरेडिक में इरेगुलर इंटरवल होगा, इरेगुलर प्लेस होगा, एंडेमिक में पर्टिकुलर प्लेस होगा, एपिडेमिक में पर्टिकुलर पीरियड होगा, पैंडेमिक डिजीज में थ्रू आउट द कंट्री, कॉन्टिनेंट और द वर्ल्ड। You have clearly seen this picture. Plant disease can be identified on the basis of symptoms, while in case previous slide disease on the base of their occurrence means disease को हमने कई टाइप से क्लासिफाइड किया है, ये है on the basis of the occurrence. Next, symptoms based on symptoms, like that symptoms external and internal reaction or alternation of plant as a result of disease is known as a symptoms, means changes, internal and external reactions change हो जाए. अगर we have got disease, then what happen, external and internal reactions हमारे change हो जाते हैं. वैसे ही plants में you have clear seen this picture, alternaria blotch on apple means internal and external reactions, like that crown gall on peach यानी gall formation on root, part of root. Sign, what is sign? Sign means the pathogen or its part or product are seen on the host plant by which the disease is identified. Sign means, what is symptom and sign difference? Symptoms mean reactions होंगे external और internal, while in case of sign pathogen part propagules, like that हम बात करें राइजोप्टोनिया की बात करें, राइजोप्टोनिया एक पैथोजन है, उसमें क्या होता है, उसका स्क्लेरोशिया यानी उसका पार्ट है स्क्लेरोशिया, वो आपको इन्फेक्टेड लीफ, इन्फेक्टेड रूट में मिलेगा. राइजोप्टोनिया एक सोइल बॉर्न डिजीज है. राइजोप्टोनिया का आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरोशिया, वो क्या है, पार्ट. पैथोजन के पार्ट को क्या बोलेंगे, साइन. जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरोशिया. उसे आप देख के पता लग सकते हैं कि नॉट ए सिम्टम्स, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए पैथोजन, इज ए साइन. लाइक दैट इन बैक्टीरिया ooze, हम ooze देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, बैक्टीरियल का पार्ट है. द पैथोजन और इट्स पार्ट और प्रोडक्ट आर सीन ऑन द होस्ट प्लांट बाय विच द डिजीज इज आइडेंटिफाइड. बैक्टीरिया ooze, फायर ब्लाइट, ग्रीन मोल्ड ऑन ऑरेंज. सिंड्रोम्स, symptoms, syndrome, symptoms, sign and syndromes. When symptom and sign are present on the host, one of the most important example, white rust of mustard. आपको एक white rust mustard ही ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जिसमें symptoms भी मिलेंगे, sign भी मिलेगा. Other disease, in other disease only either symptoms or sign, not both. While in case of white rust of mustard, you have clear seen both of symptoms and sign are present on the host by which disease is characterized is known as a syndromes. Sign means sclerotia, you have clear seen sclerotia, and symptoms mean white patches. Sign means आप whitish पाउडर देखेंगे, whitish पाउडर वो क्या है, साइन, पैथोजन का पार्ट है. और जो व्हाइट, आप सरसों के खेत में जाते हैं, सरसों के खेत में सफेद सफेद बड़े बड़े धब्बे नहीं दिखते अपन को सरसों में, सबने देखा होगा आई थिंक.
विच इज बिलोंग टू फार्मर फैमिली। सबने देखा होगा सरसों के पेड़ में, सरसों के पौधे में वाइट पैचेस, वाइट धब्बे, सफेद रस्ट ऑफ या फिर वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, एल्ब्यूको कैंडिडा। So when symptoms and sign are present on the host by which disease is characterized is known as a syndrome. Rust, rust a disease giving a rusty, rusty का मतलब जानते हो, जंग, जंग नहीं लग जाती है लोहे में, लाइक ईंट जैसा कलर हो या फिर जंग लग जाए लोहे के, रस्टी अपीयरेंस, जैसे कि अपन को क्या लगे कि पौधे में जंग लग गई। A disease giving a rusty appearance to a plant and caused by rust fungi. Puccinia species rust of wheat. I think you know very well that rust is a most important disease. And today going on webinar on rust. Smut, a disease characterized by mass of black powdery and odorous spore and caused by smut fungi. Smut, what is smut? जब गेहूं की बाली में दाने काले चूर्ण जैसे बन जाए, ब्लैक स्पोर कन्वर्ट इन ब्लैक पाउडरी स्पोर्स, दाने कन्वर्ट इनटू ब्लैक पाउडरी स्पोर्स, ब्लैक पाउडरी मास इज नोन एज ए स्मट फंजाई। I think most of students are belong to farmer family, know very well, and I think saw in a field smut of wheat. You have clear seen this picture. अगर आपने घर में खेत में कहीं देखा हो तो you have clear seen this picture, black mass, black powdery mass convert into kernels. जो गेहूं के दाने हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? ब्लैक पाउडरी मास। क्या है ये? स्पोर, अस्टिलेगो, अस्टिलेगो के क्या है ये? स्पोर, अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, अस्टिलेगो सजेटम ट्रिटिसाई के स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर। Bunt, a disease caused by the fungus Tilacia in which the content of affected grain are replaced by odorous smut spore. करनाल बंट ऑफ व्हीट, ट्राई मिथाइलएमाइन की वजह से सड़ी हुई मछली की बदबू। अगर गेहूं में से सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही है मीन्स करनाल बंट से अफेक्टेड है ट्राई मिथाइलएमाइन की वजह से। और यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर, this is healthy seed and this is infected seeds, means black spot, black is in kernels. Bunt site, ergot, a disease of some cereal crops in which infected grain is converted into hard structure. You know, अभी फील्ड में जाओगे कुछ टाइम बाद ईयर फॉर्मेशन होगा यानी ग्रेन फॉर्मेशन होगी, सिट्टा आएगा बाजरे में, तो आप क्या देखोगे? अर्गट डिजीज। मोस्टली अर्गट डिजीज कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है फार्मर्स फैमिली में अपने खेत पे। तो उसमें क्या देखते हैं हम? सिट्टे में क्या होता है? ग्रेन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पिंकिश चिपचिपा दर्व निकलता है उसमें। आपके जो बाजरे के दाने हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? ब्लैक स्क्लेरोसिया में, ब्लैक स्क्लेरोसिया में चेंज हो जाएंगे, भूरे और काले रंग के। और क्या होगा? एक स्टेज तो आपकी ये होगी, सेकंड स्टेज क्या होगी? इसमें 2 स्टेज होती है। सेकंड स्टेज क्या होगी? पिंकिश यानी गुलाबी कलर का लिक्विड ऊज टाइप का आउट होगा, गुलाबी लिक्विड निकलेगा। तो ये क्या है इसके मेजर सिम्टम्स? A disease of some cereal crop in which infected grain is converted into hard structure. Black, you have clear seen this picture. Black hard structure. This is a sclerotia, and this one is pinkish dewdrop. Ergot of Bajra. It is a sclerotia producing fungus. Blight, in which the symptoms characterized by general and rapid killing of plant organ. Blight. अभी हम फील्ड में जाएंगे, बाजरे में ब्लाइट आ रही है, लाइक ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज है। मूंग में जाएंगे, मूंग में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट आ रहा है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज आ रहा है। ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज, ब्लाइट इज ए
कॉमन डिजीज क्या होता है इसमें? रैपिड किलिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक दैट लीव, स्टेम, फ्लावर. Bacteria leaf blight of cotton. You have clear seen this picture. Rapid killing. जला हुआ झुलसा टाइप का ब्लाइट क्या है? झुलसा अपीयरेंस. आपको जला हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो. Xanthomonas campestris PV malvacearum caused by. This one is on the leaf. Blight appearance. Blight. So we can identify on the basis of symptoms. This is a blight disease. अगर आप फील्ड में जाओगे एज ए पैथोलॉजिस्ट, आपने पैथोलॉजी पढ़ी है एग्रीकल्चर बीएससी में, आप फील्ड में जाके अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हो कि हाँ ये डिजीज क्या है, किसके बेस पे बता रहे हो? सिम्टम्स के बेस पे. यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर और क्लियर सीन दिस इमेज ऑन फील्ड, देन यू क्लियर से दैट इज अ ब्लाइट डिजीज, दैट इज अ रस्ट डिजीज, दैट इज अ विल्ट डिजीज. इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि फील्ड में जाते ही आप पहचान पाओ. Next, wilt. Loss of rigidity and drooping of plant part due to insufficient water in the plant. Wilt में क्या होता है? What happen in the wilt? Rigidity and dropping of plant part. यानी उसकी सख्तनेस खत्म हो जाती है और प्लांट ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है. Why? Insufficient water. And major agent of this disease, Fusarium oxysporum forma species cumeni. This is a major reason. क्या होता है विल्ट में? फ्यूजेरियम क्या करता है? एक टॉक्सिन क्रिएट करता है. मोस्ट ऑफ विल्ट स्टेम में होती है और रूट में होती है. स्टेम में क्या करेगा वो? जाइलम में क्या करेगा? प्लग कर देगा. यानी जो उसका म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस या टॉक्सिकेंट सब्सटेंस क्रिएट करेगा वो क्या करेगा? जाइलम और फ्लोएम को प्लग कर देगा. अब क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम प्लग हो गया तो ना तो प्लांट वाटर अपटेक कर सकता है और ना ही फूड रिसीव कर सकता है, रूट तक पहुंचा नहीं सकता और रूट से वाटर अपटेक नहीं कर सकता. देन व्हाट हैपेंड? लॉस ऑफ रिजिडिटी एंड ड्रूपिंग ऑफ प्लांट पार्ट एंड लास्ट डेथ ऑफ प्लांट. हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर? रॉट. The softening, discoloration and disintegration of succulent plant tissue as a result of fungal or infections. Rot में क्या होता है? रूट जो पार्ट है या फिर कोई भी whatever रूट, फ्रूट, सॉफ्ट या सकुलेंट पार्ट है टिश्यूज का, उसको क्या करेगा? वो डिसइंटीग्रेट कर देगा. पैथोजन क्या करेगा? सॉफ्ट करेगा, उसका कलर डिसकलर कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा और क्या होगा रिजल्ट? फंगल का इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा. लाइक दैट रूट ऑफ रूट रॉट. अगर रूट रोट में रूट को रोट हो गया मीन्स रूट में इन्फेक्शन हो गया तो वो वाटर अटैक नहीं कर पाएगी, देन प्लांट ऑलरेडी डेथ. स्टेम रॉट ऑफ मस्टर्ड. मैनी एग्जांपल्स ऑफ रॉट: स्टेम रॉट, रूट रॉट. एंथ्रेक्नोज. ब्लैक sunken lesion caused by Coleotrichum fungus on leaf, stem and fruits. Anthracnose disease, you have seen many plant part like a leaf, seed and fruit. Anthracnose of chili, you have clear seen this picture. Anthracnose disease caused by always Coleotrichum species. Species whatever, but pathogen Coleotrichum. Specific species whatever. क्या होता है? ये क्या है? ये सिम्टम्स क्या है? दिस फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस एसरगुलाई, मीन्स Coleotrichum produce a asexual fruiting body. You have clear seen this picture, a black dot. Black dot means asexual fruiting body known as एसरगुलाई. जो asexual fruiting body बन रही है maybe plant part, leaf, fruit, stem, whatever. This is a एसरगुलाई. एसरगुलाई क्या है? This is asexual fruiting body of Coleotrichum. Got it? Downy mildew, a plant disease in which the sporangiosperm. सबसे पहली बात डाउनी मिल्ड्यू. सबके खेत में बाजरा होगा. I think most of major growing area Jaipur, Rajasthan.
बाजरा. ए प्लांट डिजीज मीन्स, क्यों बाजरा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है. मे बी हो सकती है ज़्यादा, पर इरेगुलर है, बट बहुत ही कम मात्रा में होती है. वी नो वेरी वेल दैट. सो हम क्या लेते हैं? बाजरा. बाजरे में कम पानी की जरूरत होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ इरिगेशन. सो वी टेक पल्म मिलेट. पल्म मिलेट में मेन 2 डिजीज होती है बाजरे में, हमेशा ध्यान रखना. मेन मेजर डिजीज, वैसे तो काफी होती है, पर मेजर डिजीज अर्गट डिजीज we have discussed earlier, and second one is downy mildew. Downy mildew disease क्रॉप ग्रो होने के आपको 30-40 दिन बाद आपको दिखाई देगी. लाइक दैट, इन विच 2 स्टेज डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी स्टेज और ग्रीन ईयर स्टेज. ओके, इन विच प्लांट डिजीज, अगर आपको खेत में कहीं भी पौधा बोना बहुत सारे गुच्छों में मिले, यानी उसके पौधे में बहुत सारे क्लम्प निकल जाए, बहुत सारे लीव्स का मॉडिफाई हो जाए, तो आप क्या समझोगे क्या है ये? इट इज ए डाउनी मिल्ड्यू. प्लांट डिजीज इन विच स्पोरेंजियोस्पोर and spore of the fungus appear as a cottony downy growth on the lower surface of leaves and stem, fruit etc. Malformation like, आपको बहुत सारे गुच्छे में दिखता है. आप सबसे पहले क्या करेंगे? लीव्स के नीचे सतह पे देखेंगे. अगर लीव्स के नीचे सतह पे व्हाइट स्पॉट है स्पोरेंजियोस्पोर के, देन we can say downy mildew disease. And later stage, सिट्टा जब निकलेगा बाजरे का, then emerge ear formation in, then what is happen? आपका जो सिट्टा है उसमें क्या होगा? दाने नहीं बनेंगे, या दाने बनेंगे, मे बी दाने मतलब ग्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा. तो उसमें क्या होगा? उसमें लीफी स्ट्रक्चर अराइज होगी. सिट्टे में अगर बाजरे के सिट्टे में आपको कहीं पत्तियां निकलती हुई दिखाई देती है, तो क्या है ये? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ बाजरा. और सैंपल कलेक्शन करना स्टार्ट कर दो. फील्ड में जाके सैंपल कलेक्ट करो, फील्ड में जाके विजिट करो, ऑब्जर्व करो कौन कौन सी डिजीज आ रही है. caused by Sclerospora graminecola, example downy mildew of grapes, many disease downy mildew of cucurbits. Phyllodes means sesame, I think some farmer grows sesame. Conversion of floral part into leaf like structure. जब तिल के पौधे का फ्लोरल पार्ट, फूल वाला पार्ट लीफी स्ट्रक्चर में राइज हो जाए, then we can say sesame phyllodes, caused by phytoplasma. Phytoplasma is a cell wall less, मतलब क्या नहीं होती इसमें? lack of cell wall. ओके, फाइलोडी, कन्वर्जन ऑफ फ्लोरल पार्ट इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अभी हमने बाजरे में भी पढ़ा सेम कि लीफी स्ट्रक्चर निकलेगी बहुत ज्यादा, वो भी एक फाइलोडी का ही रूपांतर मानिए. मींस फ्लोरल पार्ट जब लीफी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, गुच्छा बन जाए, तो वो क्या होगा? फाइलोडी. लीफ कर्ल, ए सिम्टम्स कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल बेंडिंग और कर्लिंग ऑफ शूट, लीफ, स्टेम ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. आप फील्ड में जाते हो तो आप देखिएगा, आप वायरल को बहुत दूर से पहचान सकते हो. बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसके. कर्लिंग, कपिंग, लीविंग, मतलब जो पत्ता है वो कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा. यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. बेंडिंग होगी, कर्लिंग हो जाएगी सूट में, लीव्स में, स्टेम में, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. पत्तियां मुड़ी हुई होंगी, टुड़ी मुड़ी, मतलब कप के साइज में होगी, इन्वर्टेड होगी, अपवार्ड होगी, कपिंग होगा. इट इज ए viral disease caused by leaf curl of cotton. Mosaic means, आपको अगर कहीं कोई पत्ता दिखता है, mosaic means येलो मोजेक ऑफ लेग्यूम्स. आप मूंग में जाइए, मूंग में आपको येलो मोजेक ऑफ लेग्यूम्स बहुत दिखेगा. इसमें क्या होगा? मोजेक का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है. मोजेक मीन्स येलो पार्ट इंटरमिंगल या मिक्सअप विथ ग्रीन पार्ट. येलो पार्ट जब ग्रीन पार्ट के साथ मिक्सअप हो, just 1 second, when a yellow part with a mix up green part, then is a
and intermingle patches of normal light green or yellow color is known as a mosaic, yellow mosaic of legumes. Blast, blast अभी बाजरे में बहुत आ रही है blast. राइस का मेजर डिजीज है. लीफ, ब्लेड, बड, अदर प्लांट पार्ट, whole plant is rapidly killed and boat shape spot appear on the leaf stem is known as a blast disease. ब्लास्ट डिजीज का सबसे मेन टिपिकल करेक्टर है नाव के शेप के स्पॉट अपीयर होना, बोट शेप के अपीयर. बोट शेप सिम्टम्स, अगर आपको अभी बाजरे में आप जाइए फील्ड में बहुत ज्यादा डिजीज आ रही है, बाजरे के खेत में अगर आप जाएंगे तो बोट शेप के आपको क्या दिखेंगे? सिम्टम्स. एंड व्हाट हैपन? रैपिडली होल प्लांट इज रैपिडली किल्ड. ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिकुलेरिया ग्रेजिया, परफेक्ट स्टेज मैग्नाफोर्था ग्रेजिया. एस कलर के होंगे, स्पाइंडल शेप में होंगे, स्पाइंडल शेप या बोट शेप. यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. बोट शेप या स्पाइंडल शेप के होंगे और एस का मतलब जो राख होती है उस टाइप के होंगे ऑन लीव्स. हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन्स ओवर ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाना, एक्सेस ग्रोथ हो जाना ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, सेल्स की साइज का बढ़ जाना. एक होता है हाइपोट्रॉफी, एक होता है हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लेसिया. डोंट कंफ्यूज बोथ ऑफ देम. हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया. हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ेगा. इन विच हाइपरप्लेसिया नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, इंक्रीज नंबर ऑफ cells. Not confuse both of them. And hypotrophy, hypo means, hyper means excess growth, hypo means reduce. अगर आप hypo पढ़ेंगे मतलब reduce growth. Hypoplasia, reduce number of cells. Clear this? Hypertrophy increase, hyperplasia increase number of cell, and hypotrophy reduce size of cell, hypoplasia reduce number of cells. Example, white rust of crucifery. You have clear seen this picture. White rust of crucifery हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा. इसमें देखिए आप साइज क्या हो गया, बढ़ गया है इसका. यहाँ से देखिए, ये देखिए इसे कैसे गाल अपीयरेंस हो गए हैं. वाट डिजीज ऑफ पोटैटो में कैसे एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है. ये क्या है? पोटैटो. वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है इसकी. हाइपरप्लेसिया earlier discussed. In hyperplasia means increased number of cells. You have clear seen this picture. Crown gall, gall formation excess. Phytoplasma, phytoplasma I told already. Phytoplasma molecules and soft skin that in fact plant and cannot be grown in culture. Phytoplasma क्या है? Phytoplasma lack of cell wall. It is a prokaryote. Phytoplasma is a prokaryote, lack of cell wall, cause infect in plant and not can be grow in culture. आप saprophytically culture media में से grow नहीं कर सकते हैं. It is a biotroph, only on living organism, require living organism. Phytoplasma caused by sesame phyllodes caused by phytoplasma. Virus scans, formation of chlorophyll in non-chlorophyll part, येलो टू ग्रीन. वायरस कैंस का मीन्स है क्लोरोफिल का बनना, यानी नॉन क्लोरोफिल पार्ट में येलो टू कैसा हो जाना? ग्रीन पार्ट. क्लोरोसिस, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल का खत्म हो जाना, ग्रीनिश पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाना. येलो वेन ऑफ भिंडी. पाउडरी मिल्यू, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. अगर आपको पाउडरी सरफेस पे कहीं भी पाउडरी दिखता है तो आप क्या पहचानेंगे? पाउडरी मिल्यू ऑफ डिजीज. Powdery mildew of disease, powdery appearance. Chlorotic or necrotic area are covered with superficially growing mycelia, means dusty or powdery appearance. You have clear seen this picture. आप पिक्चर को देख के ही या फिर आप फोटो में इमेज देख के ही पहचान जाएंगे कि ये क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू. मोस्ट ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू caused by Erysipelas polygamy. Damping off means decay of seedling stem near the soil line, resulting the toppling of seedling over on the ground, mainly due to Pythium species. Damping off means, damping off का मतलब है कि जिसका स्टेम है वो क्या हो जाता है? गल जाता है, सड़ जाता है.
जब अगर आपकी मतलब जहां आपका बेस है वही टूट जाए तो फिर पौधा तो खड़ा रह ही नहीं सकता, क्या होगा उसमें, पौधा अल्टीमेट डेथ। डिकेइंग ऑफ सीडलिंग, स्टार्टिंग में जो सीडलिंग निकलेगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। Scab, a hyperplastic symptoms characterized by rough and crust-like lesion. Potato पे अगर आप देखेंगे, if you have seen rough or crust lesion, excessive cork formation, this is a step potato scab. Blight, a disease, we have earlier discussion. What is a blight? We have clear seen this picture. Blight, rapid killing death. Phanerogamic parasite like that, Cuscuta, Loranthus, Orobanchi, Striga. Cuscuta कहाँ होता है, क्या होता है Cuscuta? हम रिंज के खेत में देखते हैं पीला पीला। Total stem parasite on Berseem. Loranthus, partial stem parasite. Please more concentrate this topic क्योंकि many time asked in paper. What is a Loranthus? Partial stem parasite, total root, partial root. What is Orobanchi, total root parasite. Striga, partial root parasite. Phanerogamic parasite means जो अपना भोजन दूसरे पैरासाइट से ऑब्जर्व करे, लाइक दैट Cuscuta, टोटल स्टेम रूट पैरासाइट कहाँ मिले, कौन से ज्यादातर, मेनली बरसीम पे मिलेगा। लोरेंथस आपको मैंगो पे मिलेगा। पार्शियल स्टेम पैरासाइट मींस वो कहाँ से स्टेम कहाँ से करेगा, पार्शियल का मतलब है कि वो भोजन कहाँ से लेते हैं, सॉरी टोटल मीन्स है टोटली डिपेंडेंट होना, पार्शियल मीन्स है हाफ भोजन खुद बनाते हैं, आधा उनकी हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं। ओरोबेंकी टोटल रूट पैरासाइट है। स्ट्राइगा पार्शियल रूट पैरासाइट है ऑन बाजरा एंड शुगर केन। सो अवर टाइम इज आई थिंक ओवर, मे बी फिनिश. So we discuss about plant disease can be identified basis of their occurrence. Occurrence divided sporadic disease, endemic disease, epidemic disease, pandemic disease. Plant disease can be identified based symptoms, sign, syndromes. Symptoms में rust है, smuts है, bunt. You have clear seen these pictures: rot, anthracnose, phyllodes, blast, hypertrophy, hyperplasia, damping off, and blight disease. And last thing, Phanerogamic parasite on higher plant. अगर आपको ट्रिक चाहिए लॉन्ग मेमोरी के लिए तो मैंने जो ट्रिक बनाई है, क्लॉज, CLOS, क्लॉज. क्लॉज मीन्स C for Cuscuta, L for Loranthus, O for Orobanchi, S for Striga. क्लॉज. प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट दिस टॉपिक. आपको ये AAO के एग्जाम में मिलेगा, फेनरोगेमिक पैरासाइट, AO के एग्जाम में मिलेगा, इवन आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा ये कि Cuscuta क्या है, एक टोटल स्टेम पैरासाइट है या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है या टोटल रूट है या पार्शियल रूट है. एंड डू स्टडी. सारे दिन खेत में ही रहते हैं मैम, वेरी गुड. कविता मीना कह रही है सारे दिन खेत में ही रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तभी तो आप पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल भी तो करो. चलो, एनी क्वेरी? आई थिंक उषा कुछ पूछ रही थी. ओके, हाउ वी कैन गेट PDF ऑफ दिस लेक्चर? अभी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी इसका जो अपन ने पढ़ा पूरा, वो मैं अभी सिलेबस विथ सिलेबस आई विल शेयर टू सिलेबस एंड दिस PDF. एंड 3 बजे अपनी क्लास लगेगी एपिडेमियोलॉजी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास.